Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture 7 of CS103, where I'll continue on from where I left before in the last lecture. हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे different arithmetic operations और उसमें जो है वो different behavior of C++ related to different output statements and of how it interprets or evaluates different values. और उसमें हमने ये देखा था कि लास्ट टाइम 2.5 डिस्कस कर रहे थे एंड द बेसिक थिंग हियर इज कि आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे जो हैं वो फ्लोट्स ही हैं, ठीक है। ऑल्दो 5 डिवाइड बाय 2 हियर इट्स 5.0 डिवाइड बाय 2.0 और उसका आंसर हमने देखा था लास्ट टाइम जब हम इसको रन कर रहे थे, इट वाज इट इज सपोज्ड टू बी 2.5 एंड सो ऑन। तो इस एग्जांपल पे हम आके रुके थे, दिस वाज द लास्ट थिंग वेयर वी एंडेड। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं जस्ट फॉर नाउ, हियर यू कैन सी अ कपल ऑफ थिंग्स। टॉप पे जितने हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। The same things are mentioned here as integers, and the same things are mentioned as a maybe or there are some of the examples here that are given as floats. और हम इस particular lecture के अंदर थोड़ा सा इसको मुझे डिटेल में जाएंगे and let's move on and kind of reach the end of this chapter in this particular lecture 7. तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि at the top you're basically adding, subtracting, multiplying, dividing, taking the remainders of everything in ints. ये सब integers हैं. And what you can notice here is कि जब आप integers में ये काम करते हैं तो the answer is always an integer as well, ठीक है। And if it's supposed to be a float या decimal तो उसको क्या करता है, वो decimal points को truncate कर देता है and gives you the lowest integer or float integer. So let's say 2 plus 5, 7. Okay, so answer here would be 7. It is expected to be 7. It will be 7. ठीक है, इसको रन कर लेते हैं और रन करने के साथ साथ इसको देख लेते हैं कि what's going to happen. So if we run it, we're going to get 7, 102 and so on and so forth. यहाँ पे आपको अलबत्ता जो है वो 8.5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 12.4 मिलेगा. But there's something which is very interesting. 5 divided by 2 is going to be 2, ठीक है। If you go back there and if you see this is 5 divided by 2 over here and this is equal to 2, ठीक है। तो उसने उसको लोअर वैल्यू पे ट्रंकेट किया. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर्स याद रखने हैं, आपको याद रखना है कि ट्रंकेट किस तरह से किया जाता है और कहाँ पे ट्रंकेट करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा. द सेम थिंग ओवर हियर, 5 डिवाइड बाय 2 अगेन, दिस इज गोइंग टू बी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि डबल है 2.5 है. अच्छा, जब यहाँ पे हम कर रहे थे 5 divided by 2 में तो उसको int दिखा रहा था. Why is it showing it int? This is showing it as int because left and right are ints. जब ints दो ints के ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई होता है तो आंसर एक int ही आता है. So that's why it's showing you int 2. अच्छा, ये एग्जांपल देखने के बाद हमने आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू 2.8 एंड 2.8 इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसमें के जो थोड़ी सी स्लाइटली लॉन्गर लेंथ की सॉल्यूशंस हैं. अगेन इफ यू जस्ट रन द कोड, ठीक है, तो हमें यहाँ पे नजर आएगा कि takes a bit of time, it's running, it has run. Okay, so for example 3 divided by 2 plus 5.5, 3 divided by 2 plus 5.5 is equal to, this is the string printed as it is, and then here is where the actual computation is done. 3 divided by 2 is 1, 1 plus 5.5 gives you 6.5. The answer is 6.5. Yes, the answer is 6.5. Okay, then we go on to the other couple of examples here. 15.6 divided by 2 plus 5, and then of course 15.6 divided by 2 is going to be a double. 2 से divide होगा. 7.8 I guess. तो इसका आंसर जो है वो 7.8 आएगा. Although you can see कि यहाँ पे precision का मसला है. It's showing you 7.7999999998822, लेकिन ये precision का issue है. So this is going to be 7.8 plus 5 gets divided into 7.5 plus 7.8 plus 5 is 13. 7.8 plus 5 12.8 I guess. Yeah, जी बिल्कुल 12.8.
then so on. 4 plus 5 divided by 2, 5 divided by 2. Again, notice here that 2 here is basically in float, so 5 divided by 2 will be found first. It's going to be 2.5. If you put here, you can see 2.5. 2.5 के बाद जब वो add होगा, ठीक है, 2.5 plus 4 gives you 6.5. तो वो आपको 6.5 डबल की फॉर्म में रिजल्ट में देगा, ठीक है. That is exactly what is shown here. इस तरह ये लास्ट इवोल्यूशन है. 4 into 3 plus 7 divided by 5 minus 25.5. 4 into 3 is 12. 12 plus 7 divided by 5 is 1. ठीक है. So 12 plus 1 13. 13 minus 25.5. 13 minus 25.5 gives you 12.5. तो अगर मैं माइनस पे जाऊं तो should give me 12 minus 12.5. And that's exactly the answer. ठीक है. Okay. तो ये भी हमने एग्जांपल देख ली 2.9 तक. And I think that's those are the examples that are here for the previous lecture. Now let's continue on with our main PPT, and let's see what else needs to be done. Okay, so here's another data type जो कि बड़ी interesting है और जिससे हमने continue on करना है, which is the string data type. It is a programmer defined type which is applied in NC or ISO standard C++ library. है कुछ भी नहीं. What is a string? A string is basically a sequence of 0 or more characters including double quotation marks. Single quotes for character, double quotes for strings. तो ये आपने याद रखना है, ठीक है कुछ नहीं है, characters हैं बहुत सारे, इनको आप इकट्ठे लिख सकते हैं. और 0 और मोर का मतलब क्या है, उसमें 0 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, उसमें आप मोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब क्या है, मतलब ये है कि वी कैन हैव अ स्ट्रिंग दैट इज बेसिकली गॉट नथिंग, सिर्फ कोट्स हो, कोट्स क्लोज हो, नथिंग इनसाइड, ठीक है. उसमें ज्यादा कितने मर्जी कैरेक्टर्स डाल दें, कैरेक्टर्स में स्पेसेस भी आती हैं, कैरेक्टर्स में सेंटेंसेस भी आप डाल सकते हैं. द थिंग हियर इज कि जो अल्फाबेट की लाइब्रेरी है स्ट्रिंग की, उसमें हर तरह का कैरेक्टर पॉसिबल है. जो आपने 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे हैं, 128 से माइनस 128 से पॉजिटिव 127 तक, उनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लेंथ, सब कुछ हो सकता है. दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर. 0 और मोर इनफिनिट तक भी हो सकते हैं, यानी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. So what is a null or an empty string? A string that has no characters, of course, ठीक है. और दूसरी बात, हर कैरेक्टर की एक relative position होती है. What you need to remember is the position of the first character in a string is 0. वो 0 से start होते हैं. They don't start with 1. Typically हम C++ में हर चीज 0 से start करते हैं. So that has been the norm और हम उसी को use कर रहे हैं. It's not 1, it's 0. तो position में पहले character की वो क्या है, 0 है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बेसिकली जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी उसकी लेंथ होगी. फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ विलियम जैकब इज 13. ओके, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट के जब भी आपने मेन मेमोरी में कोई भी चीज करनी है तो पहले आपने उसमें डेटा लोड करना है, उसके बाद उसको चेंज किया जा सकता है. जाहिर है जब तक मेन मेमोरी में डेटा लोड नहीं होगा तब तक वो उसको चेंज नहीं कर सकेंगे. तो जो प्रोसेस है डेटा को स्टोर करने का मेमोरी में, that is a two-step process. It takes two different steps. The first step is that we ask the computer to allocate memory or to a specific variable, to a specific data, and then finally we include statements that actually put data into that place, that put value, that give the value of the data ताकि उसको उस मेमोरी में रखा जा सके. तो पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो मेमोरी एलोकेट करता है, as we have seen before, and then of course there are statements that then assign value to it. For example, एक और जो टिपिकल है उसको हम named constant कहते हैं. named constant क्या है, basically it's a memory location whose content cannot change during execution. ठीक है, इसको हम ये कह देते हैं कि भाई इसके आपने वेरिएबल्स को इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ये ऐसे ही रहे. फॉर एग्जांपल पाई की एग्जांपल लेते हैं. पाई के लिए द वैल्यू यू नो इज 3.1417 व्हाटएवर इट इज. ठीक है, कोई लंबी लाइन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स, बट 3.14 समथिंग है. तो बेसिकली यू वांट टू कीप इट फिक्स्ड, यू डोंट वांट टू चेंज इट, यू डोंट वांट एनीवन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के दौरान उसको चेंज करना चाहे भी तो चेंज ना कर सके. तो आप क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट डबल पाई इज इक्वल टू 3.14 व्हाटएवर स्टोर कर दे. इसके बाद आप जहां पे भी कोशिश करेंगे
पाई इज इक्वल टू 1.5 फॉर एग्जांपल, बीच में आप एक्सप्लिसिटली लिख भी दें तो उसको वो आपको सिंटेक्स एरर दे देगा, आपको कंपाइल ही नहीं करने देगा। इट्स गोइंग टू से कि आपने ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर किया, या उस कांस्टेंट को हटा दें, CONST जो कांस्ट इसका सिंटेक्स है, या वो हटा दें, या फिर आप जो है वो इसके यहाँ पे वैल्यू जो असाइनमेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू असाइनमेंट यहाँ से हटा दें। तो const जो है वो कीवर्ड है, and here's the syntax const data type identifier is equal to value, और उसमें से कुछ नहीं करना, उसमें सिंपली ये करना है data type for example is in this case, अगर मैं पाई की एग्जांपल दूं तो const डबल या float, const float, float is your data type, identifier is pi, और उसके अंदर वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी वही असाइन रहेगी। अच्छा, नोटिस दिस थिंग कि यहाँ पे जब आप किसी चीज को कॉन्स्ट करते हैं ना, तो उसके साथ में उसको उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना लाजमी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो तब भी एरर देगा, यानी कि अगर आप इज इक्वल टू वैल्यू नहीं लिखेंगे तो तब भी प्रॉब्लमेटिक है। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप इसको बिल्कुल साथ इनिशियलाइज करें। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप कांस्टेंट को हमेशा तब यूज करें जब आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, किसी भी जगह पे कोई और चेंज ना कर सके, तो उसको कांस्ट के साथ डिक्लेयर करें। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग टू रिस्ट्रिक्ट कि एक बड़े प्रोग्राम में आप बाय मिस्टेक चीज चेंज ना कर दें। तो const is used for that purpose. For example, const double conversion is equal to 2.54, this is valid, ये कन्वर्जन है 2.54 का वो फैक्टर है जिसके साथ यूज हो रहा है, और ये कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करने देगा कन्वर्जन को। टिपिकली जितने भी आपने आइडेंटिफायर्स कांस्टेंट रखने हैं, द वे टू मेमोराइज के कांस्टेंट्स हैं, हम नॉर्मली इसको एक, दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट यू शुड डू, उसको हम टिपिकली कैपिटल लेटर्स के साथ इनिशियलाइज करते हैं। जितने कांस्टेंट्स होंगे वो तमाम कैपिटल्स, ऑल कैप्स होंगे, ठीक है, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे ऑल कैप्स हैं, ठीक है। ओके, और ये कांस्टेंट्स हैं, ऑफ कोर्स इनकी वैल्यू चाहे वो आप कैरेक्टर को कांस्टेंट कर लें, आप इंटीजर को कर लें, डबल को कर लें, डजंट मैटर, बट आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू फिक्स हो रही है और वो साथ साथ इनिशियलाइज हो रहे हैं। जो ही कांस्टेंट डिक्लेयर हुए हैं डिक्लेरेशन के वक्त इनको इनिशियलाइज कर दिया गया है, बिकॉज दे कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड लेटर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन उस कंटेंट्स में भी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप कांस्टेंट हटा दें, बाय डिफॉल्ट हर चीज जो है उसकी जो वैल्यू है चेंज की जा सकती है। मसलन सिंपल डबल अमाउंट ड्यू है, इंट काउंटर है, कैरेक्टर का ch है, इंट xy है, स्ट्रिंग नेम है। अब नोटिस दिस थिंग, न्यू थिंग, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो these are some things that we'll notice and these are some things that you need to know as well कि हम इवन इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि int x, y, विच मीन्स कि आप दो इंटीजर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक का नाम x है, एक का नाम y है। तो जो x है वो x लोकेशन के ऊपर उसने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, अभी आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, इट्स फाइन, आप नेक्स्ट टाइम में उसको x इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं, उनकी रेलेवेंट लोकेशंस के ऊपर ही वो जाके चेंज हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। ओके, सो हाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू प्लेस डाटा इनटू अ वेरिएबल। द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज कि आप असाइनमेंट स्टेटमेंट इज इक्वल टू का साइन उसको यूज कर सकते हैं, एंड द सेकंड वे इज कि आप उसको यूजर से या फाइल से या किसी और जगह से रीड करके उसमें इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको उसकी वैल्यू डाली जा सकती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है सबसे आसान है, दैट इज वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हम देख चुके हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। पहले एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया जाता है, फिर उसकी वैल्यूज को असाइन की जाती है, जो कि उस वेरिएबल को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। A variable is said to be initialized the first time a value is placed into it. जाहिर है initialization का मतलब है कि आपने उसको किसी एक वैल्यू के साथ बिगिन किया है। जब बिगिन कर रहे हैं तो आप उसको बिगिन करते पहली दफा जब करेंगे तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो इनिशियलाइजेशन एरर आएगा, ठीक है। अगर बगैर इनिशियलाइजेशन के आप उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करें, मतलब उसको ऐड करने की कोशिश करें या डिवाइड करने की या कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे यूज करने की कोशिश करें, या इवन फॉर दैट मैटर प्रिंट करने की कोशिश करें विदाउट इनिशियलाइजिंग, तो वो उसमें एरर देगा। जब तक कि आप उसको इक्वल टू के साइन के साथ उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते तब तक वो अनइनिशियलाइज्ड रहेगा। एक दफा वैल्यू डल गई उसके बाद वो प्रिंट भी कर सकते हैं, यूज भी हो सकते हैं। C++ में इक्वल टू के ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, सिंगल इक्वल टू को। इट्स नॉट इक्वल टू, जो मैथ्स का इक्वल टू है ना, सिंगल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं है, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू डाल दो। तो ये इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है।
और इसमें ये एग्जांपल इसने दी हुई है, suppose you have the following variable declarations, आपने ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, num1 num2 डिक्लेयर है, दो इंटीजर्स हैं, एक का नाम num1 है, एक का नाम num2 है, फिर इस तरह डबल है, सेल है, करेक्टर है, फर्स्ट है, स्ट्रिंग str है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसने मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर की है। फॉर एग्जांपल num1 में 4 स्टोर किए है, num2 में उसने 4 into 5 minus 11 स्टोर किया है, ठीक है। अगेन एक एक्सप्रेशन है, इसको इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप पहले एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें num1 is equal to 4 को, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है 4 दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो 4 के बराबर है तो 4 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी num1 के अंदर। num2 में एक्चुअली 20 minus 11 यानी कि 9 इवैल्यूएट होगा और num2 में 9 स्टोर होगा। सिमिलरली सेल के अंदर 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 1000 व्हिच इज बेसिकली 20, तो सेल में 20 स्टोर हो जाएगा। लेकिन सेल डबल है तो यू विल नोटिस इट विल बी 20.0 या 2.0, आई डोंट नो, तो या 20.0, ठीक है। ओके, फर्स्ट के अंदर एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आप एक कैरेक्टर डी स्टोर कर सकते हैं, कैपिटल डी, सिंगल कोट्स हियर, रिमेंबर कैरेक्टर के अंदर हमेशा सिंगल कोट्स के साथ आता है। अच्छा, देन यू हैव गॉट एनीथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग str, और स्ट्रिंग के अंदर हमने एक पूरा स्ट्रिंग इट इज अ सनी डे स्टोर कर दिया, ठीक है। नोटिस दिस थिंग कि ये डबल कोट्स में है, ये सिंगल कोट्स में है। दैट डिफरेंशिएशन यू शुड ऑलवेज बी मेकिंग, सिंगल कोट्स के साथ इसमें स्टोर करने की कोशिश मत करिएगा। अच्छा, हाउ डू यू सेव द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन? ऑफ कोर्स उसको बेसिकली सबसे पहले उसको डिक्लेयर किया जाए वेरिएबल को विद इट्स अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, and then all you need to do is assign the value of the expression to the variable by making use of assignment statement on and a variable on the left side using equal to sign, and then a statement on the right side, the assignment statement. और जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जब भी हमें इसकी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, हम सिंपल उसकी जगह उस वेरिएबल का नाम यूज कर लेंगे, ठीक है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि आपको 4 + 7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू 4 + 7 कर लूँ, ठीक है, और जहां पे भी मुझे उसकी वैल्यू यूज करनी है मैं वहां पर सिंपल x को यूज कर लूँ। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। So how do you declare and initialize variables? Well, not all types of variables are initialized automatically, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वेरिएबल जो है वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो। हम वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय multiple steps. One of the steps of course is कि हम उसकी इनिशियलाइजेशन जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे साथ इनिशियलाइज कर लें। int first is equal to 13, second is equal to 10, character ch is equal to empty sets, double x is equal to 12.6. all variables must be initialized before they are used. of course ज़ाहिर है अगर आप इनिशियलाइजेशन के बगैर करेंगे तो वो एरर दे सकते हैं इन मोस्ट कंपाइलर्स, और कुछ कंपाइलर ऐसे भी हैं शायद जो उसमें आपको रैंडम या चंक वैल्यूज दे दें, ठीक है, या इवन जीरो से उसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करते हो। तो that is something that you need to see depending on your compiler and your program that you're using. लेकिन बहरहाल it's always better कि आप हमेशा वेरिएबल को इनिशियलाइज करें before they are used। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको पहली लाइन में इनिशियलाइज करना है। Another way that you can do is कि आप उसके बाद में cin के साथ जो है वो यूजर से इनपुट ले लें। अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हियर। इसमें आप नोटिस करें कि cin के साथ हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। द फर्स्ट वेरिएबल, एक वेरिएबल नेम यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड वेरिएबल नाम, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। So this particular cin is, as I explained, is basically an input read statement, और इसमें जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं this, ठीक है। ग्रेटर देन का जो साइन है, दिस इज द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू जो भी इसमें आएगी उसमें एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको आपके वेरिएबल के नाम में डाल देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ माइल्स इज अ डबल वेरिएबल, देन cin greater than miles is going to ask the user to input a value double, ठीक है, और उस डबल की वैल्यू को वो माइल्स के अंदर स्टोर कर देगा। सो माइल्स विल नाउ कंटेन द वैल्यू व्हाटएवर यू इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एंड इट विल बी डबल वैल्यू। अगर आप इंटीजर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पहले डबल में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको यूज करेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा एज वेल। अगर ये डबल्स, अगर माइल्स जो है ये एक इंटीजर होता, आप उसमें पॉइंट्स के साथ पुट करते तो वो पहले उसको ट्रंकेट करता, उसकी जो वैल्यू बचती वो उसको एज इंटीजर स्टोर कर लेता।
Okay, and at the same time we can also get more than one variable using cin, और इसका मतलब है कि हम एक ही टाइम पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स, जिस तरह कि हमने देखा था पिछली एग्जांपल में, हम बिल्कुल इसे इनपुट पे ले सकते हैं. Another example that we have seen earlier is feet and inches, which are two different variables. हम चाहें तो यूजर से ले सकते हैं अलग से, और इसका इस लाइन के नतीजे में हमें 2 दफा जो है वो इंटीजर्स इनपुट करने पड़ेंगे. ठीक है, यानी कि 2 दफा आप एक इंटीजर लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, दूसरा इंटीजर लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तब ये रन होगा. सो दैट्स द ओवरऑल मैकेनिज्म ओवर हियर. और फिर ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, इंट फीट, इंट इंचेस, और उसमें जो है वो हम 2 इंचेस सेपरेटेड बाय, अब यूजर से हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 इंटीजर्स. पहले हमने जो देखा था उसमें हमने खुद से स्पेसिफाई किया हुआ था 100. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर से हमने फीट मांगे, इंचेस मांगे, ठीक है, और उसको सिंपली आउटपुट कर दिया. और सैंपल रन में अगर हम 23 और 7 एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली द आंसर इज गोइंग टू बी फीट 23 एंड रिजल्ट 7. Okay, then we move on to the next operator, which is called the increment and decrement operator. Increment decrement operator क्या करता है? ये basically increment operator simply जो भी current value है उसको 1 से increment कर देता है. तो प्री इंक्रीमेंट क्या होगा? प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आप पहले वैल्यू यूज करें, ठीक है, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करें. तो प्लस प्लस वेरिएबल मींस कि आप पहले वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करें. एंड विल कम टू इट इन अ मिनट कि इससे फर्क क्या पड़ता है. देन द अदर थिंग इज ऑफ कोर्स इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले आपने वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करना है. तो वेरिएबल प्लस प्लस, ठीक है. अच्छा, सिमिलरली वी हैव गॉट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि डिक्रीज करता है बाय 1. प्री डिक्रीमेंट जो है वो पहले जो है वो वेरिएबल को यूज करता है, उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करता है. पोस्ट डिक्रीमेंट इज द अदर वे अराउंड, जो कि वेरिएबल को पहले जो है वो डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद उसको यूज करेगा. तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू प्लस प्लस x करूं तो करेगा ये कि वो पहले x की वैल्यू जो है उसको 5 से इनिशियलाइज किया. दोनों केसेस में डेट इज द सेम लाइन, लेकिन नीचे में अगर आप देखें तो एक प्री इंक्रीमेंट है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो प्री इंक्रीमेंट ये करेगा कि पहले इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू को यूज करेगा. सो हियर x इज इक्वल टू 5 है, पहले उसने प्लस प्लस x किया, यानी कि x को इंक्रीमेंट किया, ठीक है, x बिकम 6, और फिर उसके बाद उसने उसकी वैल्यू को y में स्टोर कर दिया. तो y में जो है वो आंसर 6 आएगा इन द केस ऑफ फर्स्ट थिंग. अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर देखा जाए तो वो x इक्वल टू 5 है, उसने पहले x की वैल्यू को यूज किया. पोस्ट का मतलब ये कि इंक्रीमेंट बाद में करना है, ठीक है, तो उसने पहले x की वैल्यू को यूज किया, x बिकम्स 5 हियर. 5 जो है वो उसने y में स्टोर किया, y में स्टोर हो गया 5, एंड देन इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ x. x अब जो है वो 6 बन गया है. तो पहले में आंसर जो है वो 5 आ रहा है, हालांकि x की वैल्यू 6 ही है. अगर आप x को प्रिंट करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद तो वो दोनों केसेस में 6 आएगा, लेकिन y की वैल्यू डिफरेंट आएगी. y की एक जगह पे वैल्यू 5 आएगी, दूसरी जगह पे वैल्यू उसकी 6 आएगी, ठीक है. सो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट अबाउट दैट. और उसमें मैं I'll try and see कि मेरे पास एग्जांपल हो, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी एज वेल ऑन योर ओन. ओके, सिमिलरली जो सिंटैक्स ऑफ सी आउट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टेटमेंट होती है. दिस इज द स्पेसिफिक सिंटैक्स. द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज दिस. The expression is evaluated first and then its value is printed at the current cursor position on the screen. जहां पे भी हो स्क्रीन में current cursor, वहां पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है. और मैनिपुलेटर क्या होता है? मैनिपुलेटर इज टिपिकली यूज्ड टू यू नो कॉज, बेसिकली मैनिपुलेशन जो है वो फॉर्मेट करता है आपकी आउटपुट को, ठीक है. सिंपली स्पीकिंग मैनिपुलेटर का सिर्फ इतना काम है कि आपकी जो आउटपुट है ना वो एक स्पेसिफिक तरीके से आए, ठीक है. फॉर एग्जांपल एंड एल है, एंड एल क्या करता है? वो बेसिकली लाइन को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है. तो अगर आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो उनके बाद उनकी जो वैल्यू है 29 divided by 4 is basically 7. Hello there is a string which is going to be printed literally. 12 is a value that is going to be printed as it is. 4 plus 7 in quotes is a string. So 4 plus 7 will be printed as 4 plus 7. 4 plus 7 without quotes is an expression जिसको evaluate किया जाएगा और आंसर 11 आएगा. तो 11 is going to be printed.
A is a character which will be printed as it is. 4 plus 7 is equal to is a string, will be printed as it is. 4 plus 7 without quotes is a expression which will be evaluated to 11. 4 plus 7 is equal to 11. 2 plus 3 into 5 is an expression which is going to be evaluated to comes out to be 17. And then you have got hello backslash n, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ backslash n क्या करता है, ये भी new line insert करता है. So hello there in the next line. Backslash n is a new line character. It may appear anywhere in the string. String के अंदर आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं, जहाँ डालेंगे वो next line उसको ले जाएगा, and that is about it. ठीक है. In this example we see hello there, my name is James. उसको एक line में print कर रहा है. Because until you don't have a slash backslash n or you don't have this end l, तो वो automatically जो है वो next line में नहीं जाएगा, उसके आगे से print करेगा, चाहे आपने different lines में लिखा हो. ठीक है. So that is what is happening. जहाँ पे backslash n आएगा वहाँ पे next line में move कर जाएगा. तो मैंने आपसे बताया था कि बेसिकली जो है ना बैक स्लैश इज एन एस्केप कैरेक्टर, और एस्केप कैरेक्टर जो है वो अक्सर एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करता है. सो व्हाट इज एन एस्केप सीक्वेंस? एन एस्केप सीक्वेंस हियर इज बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, बैकस्लैश b, बैकस्लैश r, डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश कोट एंड बैकस्लैश डबल कोट. उस सारों की आप कॉरेस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि वो कर क्या रहा है. कोई टैब दे रहा है, कोई नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा है, कोई कर्सर को जो है वो एक स्पेस मूव कर रहा है. ठीक है. बैकस्लैश बी लेफ्ट पे मूव करवा देता है. ठीक है. कर्सर मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, जो भी करंट लाइन के स्टार्ट है उस पे लेके चला जाता है. ठीक है. तो अगर वो आपने करना है बैकस्लैश आर आप यूज करेंगे. सिमिलरली गॉट बैकस्लैश, अगर बैकस्लैश इटसेल्फ प्रिंट करनी है तो डबल बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं. So C++ has a small number of operations. इसमें different preprocessor directives हो सकते हैं, और mainly जो सबसे बड़ा जो preprocessor directive है that is basically कि प्रोसेस करने से पहले, preprocessor का मतलब ये है कि प्रोसेस करने से पहले हमने कुछ directions देनी है, कुछ hints देनी है, तो वो बहुत सारे different sets of operations यूज हो सकते हैं. और टिपिकली क्या होता है, टिपिकली ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं ये C++ की डिफरेंट लाइब्रेरीज में स्टोर्ड है. मसलन सी आउट है, सी इन है, एक्सेट्रा, ये सारे किसी एक लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, और हमें प्रोसेसर को बताना होता है कि आपने उस लाइब्रेरी के अंदर से जाके ये चीज उठानी है. दीज आर ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. ऑफ कोर्स हर लाइब्रेरी का अपना एक नाम है, और हमें उसको उसके नाम से जो है वो याद रखना पड़ेगा क्या वो चाहिए होगी. मसलन हैश इंक्लूड जब हम करते हैं तो हैश का मतलब है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. इंक्लूड का मतलब है कि लाइब्रेरी से एक फाइल आपने इंक्लूड करनी है या हेडर से इंक्लूड करनी है. ठीक है. कोई फाइल है जो आपके पास पड़ी हुई है वो इंक्लूड होनी चाहिए. और जब आप नाम देते हैं आईओ स्ट्रीम, तो वो आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल को लोड करता है. दैट्स द लाइब्रेरी आईओ स्ट्रीम. ठीक है. और वो उसका वो नाम भी, उसका हेडर का नाम भी यही है. तो एक बेसिकली हेडर फाइल बनती है. विल कम टू इट लेटर, हम एंड में बिल्कुल बनाएंगे भी और शायद करेंगे भी. And preprocessor directives are the command that is applied to the preprocessor program कि भाई पहले से फाइल्स को अरेंज करो. इनको अरेंज किए बगैर आप कोड को समझ नहीं सकोगे, फंक्शंस नहीं समझ सकोगे, you'll have your issues. तो एक तो ये हो गया. अच्छा, all preprocessor commands usually begin with a hash, of course, and then another very very important thing is कि no semicolon is found at the end of these commands. ठीक है. हैश से स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट हैश जब तक आता रहेगा तब तक वो चलता रहता है. उसके अलावा वो जो है इट देन इंक्लूड्स दीस फाइल्स. सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है जो हम देख चुके हैं. हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, हमने आईओ स्ट्रीम इसमें इंक्लूड की थी, एंड इट कॉजेस द प्रीप्रोसेसर टू इंक्लूड द हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम इनटू द प्रोग्राम. द प्रीप्रोसेसर कमांड्स आर प्रोसेस्ड बिफोर द प्रोग्राम गोज थ्रू द कंपाइलर. सी इन एंड सी आउट क्या है? सी इन सी आउट आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, लेकिन उसमें जो नेम स्पेस है वो std है. तो ये जो यूजिंग नेम स्पेस std है ना, दिस इज अगेन अनदर लेट्स से अ फिक्स थिंग. इट सेज के आईओ स्ट्रीम के अंदर आपने std ढूंढना है. std के अंदर जो है वो सी इन और सी आउट आपको मिलेंगे. तो आप जब तक ये दो स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एट द टॉप एंड देन यू राइट यूजिंग नेम स्पेस std, तो std तब तक उसको वो सी इन सी आउट नहीं मिलेंगे. द रीजन फॉर दैट इज
IOStream वो लाइब्रेरी फाइल है, वो मेन कोड है जिसके अंदर जो है वो सी इन और सी आउट पड़े हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। बल्कि ज़्यादा इसको इस तरह समझ लें कि IOStream वो मेन फाइल है या मेन लाइब्रेरी है एक पूरा, जिसके अंदर std पड़ी हुई है, ठीक है। std नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, हेडर फाइल, और वो जो std नाम की फाइल है उसके अंदर सी इन और सी आउट पड़े हुए हैं, ठीक है, एज फंक्शंस। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग over here, तो आपको दोनों लाइन इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अच्छा, the question automatically here is कि why don't we have another hash include std, because std is not a library। जब आप हैश इंक्लूड करते हैं तो आप लाइब्रेरी ऐड करते हैं, जब आप std कर रहे हैं तो आप एक्चुअली एक क्लास, एक नेम स्पेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेम स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम लाइब्रेरी। नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस with their own functions, but on the other hand, IOStream or library file can contain many different namespaces. तो इसकी hierarchy जो बनती है वो ये बनती है कि you have got a library file which is a collection of many different namespaces, and from within those namespaces each namespace may contain some different functions. So in this case std contains the cin and cout function, तो इसलिए हम इसको hash include IOStream and then using namespace std करते हैं। स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इटसेल्फ इज गुड इनफ, इसके बाद आपको यूजिंग नेमस्पेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, दिस ब्रिंग्स अस टू द मेन थिंग, how do we create a C++ program? C++ program is always a collection of functions. Functions हमने क्या बताए थे? Functions are basically operations, verbs, action verbs that we need to do, and these action verbs must include, हर C++ प्रोग्राम के लिए लाजमी है कि it must include a main function. Main function is a starting point, यहाँ से वो प्रोग्राम execute होना शुरू होता है। So int main with empty braces is necessary. The statements enclosed between the curly braces form the body of the function, जिस तरह हमने देखा था, और जो body of the function है वो actually वो जगह है जहाँ पे चीज execute हो रही होती है। तो that makes us good enough to maybe write our first C++ program on our own. We understand now each and everything a little bit, ठीक है, थोड़ी बहुत हमें समझ है। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा आप इसको फॉलो अप करेंगे, उतना ही ये आपको क्लियर होता जाएगा। So a C++ program contains two types of statements. One is the declaration statement where we declare things such as variables, and the other is the executable statement where we perform calculations, manipulate data, create output, accept input, etc. तो जाहिर है अब हमेशा जो हर स्टेटमेंट, उसके दो मेजर पर्पसेस हैं। या तो आप चीज को डिक्लेयर करेंगे, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ फलाना डेटा टाइप, ये इंट है, ये एक्स जो है वो एक बेसिकली करेक्टर है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड जो है वो फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारी जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। और दूसरी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स हैं। एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, जो चीज को एग्जीक्यूट करती हैं, किसी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं, या आउटपुट बताती हैं, या इनपुट बताती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दो ही टाइप्स हैं स्टेटमेंट्स की। अच्छा, प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड करें तो उसको दो हिस्से बनते हैं। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो ऊपर हम हैश इंक्लूड, यूजिंग नेमस्पेस, std और इंट मेन और कोड्स तक करते हैं, and another the program itself, which is basically given in the body of the function main as well as any other functions. तो जो function main है और बाकी सारे हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो उस int main से पीछे जो कुछ लिखा जाता है, ऑफ कोर्स उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स इज एन एक्सेप्शन, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बट एनीथिंग दैट हैज टू डू विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आएगा, और एनीथिंग दैट हैज टू डू विद प्रोग्राम, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल्स हो, चाहे वो इंट मेन हो, चाहे वो वेरिएबल्स इनसाइड द मेन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे C++ constitute करते हैं। The preprocessor directives and program statements constitute the C++ source code. Of course, combined together ये C++ का source code CPP फाइल बनाते हैं। कंपाइलर क्या करता है, CPP फाइल को पढ़ता है और CPP फाइल को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट कोड यानी .obj फाइल जनरेट करता है, और फाइनली उस .obj जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है जिसको हम .exe के साथ स्टोर करते हैं। So how do you compile a program? ठीक है, तो पहले आपको कंपाइल प्रोग्राम करते हुए you need to understand कि होता क्या है। वो कंपाइलर जो है tries to goes through the program and tries to identify any syntax errors that are present. That's the first step.
और उसके बाद वो लाइन नंबर के साथ आपको बताएगा कि जहां पे एरर अकर कर रहा है। फॉर एग्जांपल हियर्स व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स से हमने जो है वो example2 syntax errors.cpp को रन करने की कोशिश की और ये हमें बता रहा है कि लाइन 9 के ऊपर there is an error at character number 2146, ठीक है, there is a syntax error, क्या है उसमें सेमीकोलन मिसिंग है। आइडेंटिफायर नम से पहले आपने कोई आइडेंटिफायर नम दिया है, उससे पहले एक सेमीकोलन होना चाहिए, सेमीकोलन जो है वो मिसिंग है। सिमिलरली लाइन 11 के ऊपर there is another error at character 2065, जो कि temp num is an undeclared identifier, temp num को आपने बताया नहीं इसकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है। So these are some things, some typical things जो कि हमें नजर आ रही हैं in a typical syntax error। इनको देख के आपको पता चल सकता है किस लाइन में रफली किस कॉलम नंबर पे जाना है, ठीक है। कॉलम नंबर 2146 है पहले में, दूसरे में 2065 है। उस कॉलम में आपको नजर आएगा कि you will probably have a temp num which जिसके साथ आपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं किया, या फिर आप कहीं सेमीकोलन मिस कर गए। सो व्हाट आर द डिफरेंट सिंटैक्स रूल्स? सिंटैक्स रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमें बताते बेसिकली ये सिर्फ सिंपली ये बताते हैं कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्या चीज हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट इन अ कोड एंड व्हाट वी शुड अवॉइड राइटिंग इन अ कोड। So errors are typically found in syntax, जो है वो compilation टाइम पे आपको वो मिल जाते हैं। जो typically जितने भी errors syntax errors हैं वो आपको compile टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। इनको हम compilation errors कहते हैं और compile time error कहते हैं, और compile time error में हमें तमाम syntax errors मिल जाते हैं। int x line 1, int y line 2, अच्छा int y के साथ सेमीकोलन लगाना भूल गए तो ये गालिबन दिस इज एन एरर, ठीक है। डबल z line 3, y is equal to w plus x line 4। अच्छा अब यहाँ पे ये लाइन चौथी लाइन भी एरर है, क्यों? क्योंकि y को जो है आपने ना w डिक्लेयर किया है, सॉरी ना w डिक्लेयर किया है ना x डिक्लेयर किया है, ठीक है, कि उसकी इनिशियलाइज किया उनको। यहाँ पे w और x अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स हैं, दैट्स वन एरर। एंड द एरर इज कि y के साथ आप सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। तो लाइन 2 पे भी एरर है, लाइन 4 पे भी एरर है, ठीक है। दीज विल बी फाउंड आउट एट द कंपाइलेशन टाइम। Like I said, blanks must be used very, very intelligently, or we must use blanks to one or more blanks to separate numbers when data is input, ठीक है। जब भी डाटा इनपुट करना है तो आप इवन स्पेस को यूज कर सकते हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट इनपुट्स, जब भी डाटा इनपुट होगा। Blanks are also used to separate reserved words and identifiers from each other and from other symbols। तो blanks जो हैं वो typically रिजर्व वर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली ब्लैंक्स मस्ट नेवर अपीयर विद इन अ रिजर्व्ड वर्ड और आइडेंटिफायर। आपने आइडेंटिफायर को ब्रेक करना है तो दैट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट यूज ब्लैंक्स फॉर दैट। इसी तरह सेमीकोलंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, कॉमास हैं, ये सारों के अपने एक मीनिंग है, अपनी यूजफुलनेस है, ठीक है। ऑल सी प्लस स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, दीस आर आल्सो कॉल्ड अ स्टेटमेंट, द सेमीकोलन इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ब्रेसेस के दरमियान जो भी चीजें हैं ना, दे आर बेसिकली कंसीडर्ड एज अ डिलिमिटर, एज अ डिवाइडर, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है ये। और इट्स नॉट अ स्टेटमेंट रियली, इट्स बेसिकली जस्ट डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ योर स्टेटमेंट्स, डिफरेंशिएट करना चाह रहा है कि ये एक स्कोप के तमाम वो हैं। एंड विल कम टू इट, जब इफ एल्स करेंगे, दूसरी चीजें करेंगे, विल देन सी एंड यूज दीस ब्रेसेस accurately। Similarly, we have got commas that separate items into a list. They are not to be used without meaning। अच्छा, मेन जो इशू है ना वो सिमेंटिक्स का आता है। सिमेंटिक्स इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स दैट गिव्स मीनिंग टू अ लैंग्वेज। यानी कि कहने को अगर देखा जाए 2 + 3 × 5 and braces 2 + 3 × 5 are two different expressions। they mean they look exactly alike, लेकिन they mean totally different things, ठीक है। दे आर टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। उनका आंसर भी आप करके देख लें तो 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो होता क्या है आमतौर पे कि वी कैन पॉसिबली रिमूव ऑल सिंटैक्स एरर्स ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टिल नॉट गेट द राइट आंसर। वो रन कर भी रहा है तो उसका मतलब वो नहीं आ रहा, उसका आंसर वो नहीं आ रहा जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड दैट हैज टू बी डन विद योर हाउ यू राइट इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 + 3 पहले ऐड करवाना है
तो अगर आपने 2 + 3 × 5 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो आपसे 17 देगा एंड नॉट बेसिकली 25. द रीजन ऑफ कोर्स क्लियरली इज कि वो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देगा बॉड मास. तो कहने को वो सिंटेक्स वाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उसका आंसर गलत आ रहा है. द कंप्यूटर हैज नो वे ऑफ नोइंग इट. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट. ठीक है. आइडेंटिफायर्स जो हैं वो उनका नाम आपने बहुत सोच समझ के रखना है. नेमिंग आइडेंटिफायर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल नाम से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज है. फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स पर इंच है, so the name itself is very very clear. I could write it as cm_per_inch works fine. ठीक है. अच्छा, ये क्योंकि ऑल कैप्स में है, ऑल कैप्स का मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा. तो सेंटीमीटर्स पर इंच इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. इट्स गोइंग टू होल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. अच्छा, इकट्ठे लफ्ज लिखने से अवॉइड करें. इंस्टेड उसको क्या करें, आइदर यूज capitalize the beginning of each new word like I said, and you'll see यहाँ पे लिखा हुआ है it's all in small and it makes reading difficult. या तो s को कैपिटल कर दें या फिर अंडरस्कोर डाल दें. ठीक है. तो that also makes things more readable. अच्छा, then you've got another thing called prompt lines, which are basically आपने ऐसी सी आउट स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली बताती हैं कि करना क्या है, यूजर को बताने के लिए. ठीक है. तो जब भी इनपुट वगैरह की जरूरत हो यूजर से, तो उसको आप लाजमी यूजर को बताएं कि व्हाट इज ही एक्सपेक्टेड टू डू. ठीक है. फॉर एग्जांपल, वी नीड टू टेल हिम प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड प्रेस द रिटर्न की. तो वो नंबर एंटर करेगा 1 से 10 के दरमियान और रिटर्न की प्रेस करेगा, ऑटोमेटिकली हमें वो नंबर मिल जाएगा. सो द इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी वेरी क्लियरली रिटन इन द प्रीवियस लाइन, वरना वो उसको ब्लिंक करता नजर आएगा, समझ नहीं आएगी उसने करना क्या है. He'll never get to know. Of course, commenting and documenting is a necessary part of documenting of your documentation of your program is absolutely necessary. तो उसमें कमेंट्स हैं, उसमें अगर आपने हर चीज जो है, हर कोड का हर हिस्सा जो है वो एक डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, उसको समझना, उसको मॉडिफाई करना आसान हो जाता है. लेकिन कमेंट्स जो हैं वो बड़े तरीके से, हौसले से और सिस्टमेटिकली होने चाहिए. ये नहीं कि कमेंट्स की भीड़ मार हो जाए, हर लाइन पे आपने कमेंट लिखा हुआ है. नो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. आपने हर वो जगह जहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम हो रहा है, जहाँ ब्लॉक ऑफ वर्क हो रहा है, उस ब्लॉक को एक्सप्लेन करना. That's how I prefer writing comments, and that's how I would also recommend you to write comments. So for example, there are two ways of declaring a variable: int feet inch, double xy. The other method is writing it on the same line. Both are correct, but of course the second one is definitely very hard to read. एक लाइन में एक ही सेमीकोलन होना चाहिए. That is what you should always make sure. ठीक है. And the first line makes things compact as well as readable. तो एक उसके लाइन के अंदर आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, और एट द सेम टाइम देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल इन वन लाइन. अच्छा, देन यू हैव गॉट अदर फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स. उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, या उनको कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं, या सिंपल असाइनमेंट कहते हैं. और कंपाउंड ऑपरेटर्स जो है ना, दे एक्चुअली प्रोवाइड अ मोर कंसाइज नोटेशन. मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप सिंपल असाइनमेंट है x इक्वल टू x इंटू वाई. ठीक है. अगर आप सेम नंबर को x के अंदर ही स्टोर करें, x को y से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको x में ही स्टोर करना है, तो द अल्टरनेट वुड बी कि आप x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y व्हिच इज इक्विवेलेंट टू, इन द सेंस कि वो भी यही कह रहा है कि पहले x को y से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको x के अंदर ही स्टोर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर दो. ठीक है. सो बोथ आर इक्विवेलेंट. सिमिलरली यू कैन हैव प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड mod इक्वल टू. So finally, I think we come to the end of chapter 2. Here the talk has been about C++ program, about correction of functions, one of which is always called main. Identifiers consists of letters, digits, and underscores, and begin with the letter or underscore. The arithmetic operators in C++ are addition, plus, subtraction, minus, multiplication, multiply, division, divide, and modulus, percentage. Arithmetic expressions are evaluated using the precedence associativity rules, जो कि all automatic हमें पता है बॉड मास के rules हैं और उन्हीं को use करते हैं. All operands are in an integral expression are integers. All operands in a floating point expression are decimal numbers. Mixed expression के केस में क्या होगा? Which contains both integers and decimal numbers. We use the cast operator to explicitly convert values from one data type to another.
हमने उसमें देखा है वो static cast वाला operator. A named constant is initialized when declared. All variables must be declared before use. Using the cin and the stream extraction operator to input from the standard input device, normally keyboard or whatever you're using. Similarly, we use cout and the stream insertion operator, this to output to the standard output device. Preprocessor commands are processed before the program goes through the compiler. तो वो preprocessor command compiler के लिए होती हैं. A file containing a C++ program usually ends with the extension .cpp. And that's it for this lecture. In the next lecture, I think we'll start off with chapter 3, and those are going to be some more interesting things to come. So far हमने lecture जो है वो 7 तक हमने major portion of how to what is a C++ program, what are different data types, how it's stored in memory, ये सारा कुछ lecture 7 तक हमने in detail cover कर लिया. So till next lecture, all the best and see you soon. Allah Hafiz.